Started the recording, uh, and I will be sharing some file. Mm, I hope this is shared. Can you see this Excel sheet? Yes, sir. Yes. अच्छा, ये डेटा था पहले प्रॉब्लम का, जिसका मैंने प्लॉट बनाया हुआ है। और इस प्लॉट को अगर मैं डेटा टाइप चेंज करूं, फॉर एग्जांपल दिस कर दूं, तो यू विल सी दैट डेटा स्कैटर इज स्ट्रेंज। लेकिन हमने जो काम करना है उसके लिए हमें क्या क्या इस्तेमाल करना है। वी हैव टू एस्टिमेट एट 3.8। 3.8 इज बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट, एंड वी हैव टू यूज थर्ड डिग्री पोलिनोमियल, सो वी हैव टू यूज फर्स्ट 4 पॉइंट्स। तो लैग्रांज की जो 3 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स आएंगी, उनको मैंने सेपरेटली कैलकुलेट किया यहाँ पे। मैंने ये कहा था कि अगर एक्सेल करना है तो तुम्हें सारे स्टेप दिखाने होंगे किसी न किसी तरह से। तो इस फॉर्मूले में क्या है, इस सेल में क्या फिल है, इस सेल में क्या है, इस सेल में क्या है, ये 4 जो टर्म्स हैं फॉर थर्ड डिग्री पोलिनोमियल, लैग्रांज पोलिनोमियल, ये कैलकुलेट करके फिर इन चारों टर्म्स को y की वैल्यूज से मल्टीप्लाई करके, यानी लैग्रांज कोएफिशिएंट्स मैंने अलग कैलकुलेट किए जिनमें सिर्फ x वैल्यूज होती हैं, और y वैल्यूज मल्टीप्लाई करके इन लैग्रांज कोएफिशिएंट से रिजल्ट लिखा। तो माय रिजल्ट इज 8.4089। अगर आपका भी है तो बहुत अच्छी बात है। And turning it back to that continuous graph with the points highlighted. So at 3.8 somewhere here, 8 point something is a reasonable result. For the second question, what was the second question? The data was same. It was only that you had to use third degree divided difference table. This is the third degree divided difference table. मैंने आपको 5.2 पे एस्टिमेट करने को कहा है। So 5.2 पे जो आप एस्टिमेट कर रहे हैं, here what part of the divided difference table is being used? Y naught, फिर y first order divided difference starting at x naught, then x minus x naught, y second order divided difference starting at x naught, that is this, into x minus x naught, x minus x1, ये नजर आना चाहिए। यहाँ इस लाइन में मैंने पूरा फार्मूला एक दफ़ा में लिखा है, जबकि इसकी अगली लाइन में मैंने फार्मूला x वैल्यूज जो हैं, y वैल्यू एक फिक्स डाली है, बाकी मैंने डिवाइडेड डिफरेंस टेबल से उठाया है और यहाँ सारी x वैल्यूज लिखी हैं। तो वट एवर वे इट शुड, इफ यू यूज एक्सेल शीट, वहाँ पर आपको ये सब कैलकुलेशन शो करनी होंगी। So that was it about the quiz, and I now move forward for discussion on sorry, ये गलत फाइल खोल दी मैंने। I had to use continue with what we were discussing last time, numerical differentiation. I think I have opened the recording. Yes, it is. We discussed how to estimate the derivative value at a given point for which unequally spaced data के लिए जो हमारे पास divided difference interpolating polynomial है,
Okay, divided difference in triple polynomial जो है उसका derivative निकालना is the first task, and we discussed term by term how to take the derivative. In the interpolating polynomial, the first term is y naught, which is a constant. तो इसका derivative 0 है. Second term में constant times x minus x naught है, तो x minus x naught का derivative with respect to x will be 1. So this is the derivative of the second term. Similarly, to differentiate this, you have to use u into v formula. Y second order divided difference, which is a constant, will remain as it is, and the derivative of this product comes out to be a sum. And similarly, for next term, this constant will be there, and there will be a product derivative of this product of 3 terms, and you will get sum of product of 2 terms each, etc. And looking at this pattern, we generalize that a derivative of the next term, that is the 4th degree term, will be by 4th order divided difference starting at x naught constant, और बाकी 4 टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो ये सम बन जाएगा जिसमें 4 टर्म्स होंगी और हर टर्म में 3 पार्ट्स होंगे, क्योंकि एक दफ़ा डेरिवेटिव लेते वक्त इनमें से किसी एक टर्म का डेरिवेटिव लिया जाएगा. एंड अल्टीमेटली we arrived at the derivative of the nth degree polynomial with error term. मैंने error term को थोड़ा सा describe किया था last time. Today I'll not go into the detail of the error term, but how to use the formula for the derivative of a divided difference interpolating polynomial. इसमें एक simplification भी हमने discuss की थी कि in general जो divided difference in general, the divided difference formula that we write down as this, इसमें एक पहली टर्म जो है उसमें x minus x naught आता है, दूसरी टर्म यानी पहली टर्म तो फिर कांस्टेंट है, दूसरी में x minus x naught आता है, तीसरी में x minus x naught into x minus x1, उससे अगली में x minus x naught into x minus x1 into x minus x2 वगैरह आता है. Whereas in derivative formula, instead of only products, we have the sums. Here in the first term, which is constant, it starts at divided difference, first order divided difference. The next term, second order divided difference into x minus x1. और इसमें एक और टर्म आएगी x minus x naught. लेकिन अगर x की जगह x naught रख दें, as it is indicated here, so we have a more simplified result. Then we discussed this example last time कि मुझे इसका डेरिवेटिव पोलिनोमियल का डेरिवेटिव हमें पहले से पता होता है, और हमने ये एग्जांपल इसलिए कंसीडर की कि हम अपना रिजल्ट जो कि हम इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल के जरिए डेरिवेटिव हासिल करें, एस्टिमेट निकालें उसका, या ओरिजिनल पोलिनोमियल का डेरिवेटिव निकाल के उसकी वैल्यू एट x इज इक्वल टू 5.2 पे निकालें, x इज इक्वल टू 4.1 पे निकालें. हमें पता है पहले से कि इसका डेरिवेटिव ये है और इसकी वैल्यू एट 4.1 इज 5.2, और फिर हमने डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल का एस्टीमेट के तौर पे, तो अगर मैं 3rd डिग्री काम कर रहा हूँ, इस एग्जांपल में कितने डिग्री पूछा, 3rd डिग्री, तो 3rd डिग्री का काम कर रहा हूँ, तो मुझे जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो ये इस्तेमाल करना है. Now I think there is something wrong here. ये टर्म लिखी भी है, ये यहाँ पे नहीं होनी चाहिए. This is the formula for the derivative, और इसको 3rd डिग्री तक लिखने का मतलब है कि मुझे यहाँ तक लिखना है.
Now, the expansion of this term by term, because ये compact notation में लिखा हुआ है. या अगर आपने माइक्स बंद कर लीजिए. सर आपकी स्क्रीन फ्रोजन है. मेरी स्क्रीन फ्रोजन है. कब से? सर वो क्विज की चीट दिखाई दे रही है. क्या चीज? क्विज की एक्सेल शीट दिखाई दे रही है अभी तक ये दिखाई दे रही है. इसको मैं बंद कर देता हूँ. अब क्या दिखाई दे रहा है? न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की डॉक्स फाइल आ गई ना. अच्छा, ये जो लिखा हुआ है Yes. हमारे पास f प्राइम एट 4.1 अप्रोक्सीमेट, ये कॉम्पैक्ट नोटेशन में लिखा हुआ है. इस कॉम्पैक्ट नोटेशन का मतलब क्या है? दैट यू शुड बी फेमिलियर विद. कि अगर मैं इसको लिखूं तो ये फर्स्ट टर्म as it is. Then in second term, you have second order divide difference. So plus second order divide difference. ये जो चीज आ रही है अब x माइनस एक्स जे, तो यहां पर ही आएगा x माइनस एक्स नॉट प्लस x minus x1. Okay, this is the expansion of this term. And what's the expansion of the next term? Plus this, and then we will have products of what kind? We will have product of three terms, product of two terms each, and there will be three terms. So मैं इनके अभी इंडाइसिस को सही करता हूँ. अच्छा जी. So each time one of the index will be missing. तो मैं x minus x naught लिख देता हूँ यहाँ पे. X minus x1 लिख देता हूँ यहाँ पे. इधर x minus x naught. अब यहाँ पे x minus x2, x1 को मिस कर दिया, और यहाँ पे x1 और x0 को मिस करना है, so x2. So expanded third degree formula for the estimate of the derivative is this. अब जो हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस टेबल है उससे हम ये डिवाइडेड डिफरेंस सब्स्टिट्यूट करेंगे. तीन डिवाइडेड डिफरेंस आ रहे हैं इसमें, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर. किस डेटा से? इस डेटा से. सो ये तीन डिवाइडेड डिफरेंसेस हैं. सो उनकी वैल्यूज 2, 1 एंड 0.
The rest are x values, x minus x naught, x minus x1. So x minus x naught, x minus x1. This is x minus x naught, this is x minus x1. And then product of two terms. And there are three such terms in the next term. तो ये इस फार्मूले को असल में किस तरह से इस्तेमाल करना है, that is the main issue when we talk about estimating derivatives using divided difference interpolating polynomial. So I'll discuss more examples, but before that, let me consider अगर equally spaced data हो तो उसमें क्या सूरत हाल होती है. Equally spaced data में polynomial जो है वो instead of function of x, it becomes a function of s, where I hope you remember that s is defined for any given set of data as जिस point पे आप interpolate कर रहे हैं minus starting point or x value of the starting point divided by h, where h is the constant difference between the consecutive x values. तो हमने जब फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरप्रेटिंग पोलिनोमियल हमने स्टडी किया था तो हमने देखा था कि डिवाइडेड डिफरेंस के जरिए ये फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरप्रेटिंग पोलिनोमियल कैसे बनता है. यहाँ पे सिर्फ याद कराने वाली बात जो है वो ये है कि वी मस्ट नोट दैट कि अब जिस पोलिनोमियल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं डेरिवेटिव एस्टिमेट करने के लिए फॉर इक्वली स्पेस डेटा, वो पोलिनोमियल अब x का फंक्शन नहीं बल्कि s का फंक्शन है. ओके चुनाचे जब मैं d by dx ऑफ फंक्शन ऑफ s निकालूंगा तो आई वुड गो फॉर चेंज ऑफ वेरिएबल. सो ds से डिवाइड और ds से मल्टीप्लाई करूंगा. दैट मीन्स d by ds ऑफ द फंक्शन ऑफ s इंटू ds by dx. आई होप कैलकुलस के ये ट्रिक्स तुम लोगों को याद हो. अब मेरे पास आ गया ds by dx और इस पर नज़र डालता हूं तो यहाँ पर s इज अ फंक्शन ऑफ x, लीनियर फंक्शन ऑफ x. जब मैं s का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x लूंगा तो 1/h बचेगा, बाकी x माइनस x नॉट का डेरिवेटिव 1 होगा. So the derivative ds by dx is replaced by 1/h. और अब मैं इक्वली स्पेस डेटा के लिए जो फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरप्रेटिंग पोलिनोमियल है उस जो कि s का फंक्शन है उसके डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s लूंगा. पिछली तरह की तरह फिर मैंने टर्म बाय टर्म डेरिवेटिव्स लेने शुरू किए हैं. ये टर्म बाय टर्म डेरिवेटिव लेता हूं मैं ऑफ कोर्स कंप्लीट पिक्चर डेवलप करने के लिए. जहां से मैं टर्म बाय टर्म डेरिवेटिव लेना शुरू करूंगा वहां इसको मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूं सो दैट टर्म बाय टर्म डेरिवेटिव समझना जरा आसान हो जाए. दिस इज द फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरप्रेटिंग पोलिनोमियल. पहली टर्म y नॉट है, तो इसका डेरिवेटिव मैं विद रिस्पेक्ट टू s लूंगा तो डेरिवेटिव y नॉट यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा. सेकेंड टर्म में डेरिवेटिव लूंगा तो डेल्टा y नॉट इज कांस्टेंट और s का डेरिवेटिव 1 होगा. हाँ याद रहे कि अब मैंने 1/h लगाना है क्योंकि ये d by dx था और मैं ये कन्वर्ट कर चुका हूँ. लिहाजा हर टर्म जब मैं डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो मुझे उसके साथ 1/h लगाना है, which can be done at the end instead of एक साथ करते रहे हम ये. तो इस सेकंड टर्म का डेरिवेटिव जो है वो सिर्फ डेल्टा y नॉट आएगा, जबकि इस थर्ड टर्म के डेरिवेटिव में इसमें से मैं h 1/h अभी निकाल देता हूँ, बाद में शामिल होगा ये. सो हम जब इस टर्म का डेरिवेटिव लिखेंगे तो डेल्टा स्क्वायर यानी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है और अपॉन 2 फैक्टोरियल कांस्टेंट है, तो ये अलग हो गया. जबकि s इंटू s माइनस 1 का डेरिवेटिव लिखने का मैं तरीका क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ,
एस एज इट इज और एस माइनस वन का डेरिवेटिव 1, फिर एस माइनस वन एज इट इज और एस का डेरिवेटिव 1, यानी यू इंटू वी इस्तेमाल किया है। हाँ, अगर मैं इसका प्रोडक्ट ले लेता तो एस स्क्वायर माइनस एस होता और उसका डेरिवेटिव 2s माइनस 1 ही आता। इसको मैंने कॉम्पैक्ट नोटेशन में लिख के बता दिया, क्योंकि लिखने में कॉम्पैक्ट नोटेशंस आसान होती हैं, जबकि अगर मैं इसको कॉम्पैक्ट नोटेशन में ना लिखूं तो फिर क्या होगा। अगली टर्म जिसमें थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस आ रहा है डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, अब इस चीज़ का डेरिवेटिव लिखना है। तो इस चीज़ का डेरिवेटिव लिखते वक्त ये देखना होगा कि व्हेन आई टेक u इंटू वी इंटू डब्ल्यू डेरिवेटिव, तो एक दफ़ा में एक s और s माइनस वन एज इट इज और s माइनस टू का डेरिवेटिव, देन s माइनस टू एज इट इज s माइनस वन का डेरिवेटिव, देन s माइनस वन s माइनस टू एज इट इज एंड s का डेरिवेटिव। सो दिस इज दी टर्म। अब ऐसी टर्म जो हैं हमारे पास आती चली जाएंगी जो कि हम डेरिवेटिव फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो डेरिवेटिव फार्मूले पे 1/h शामिल हो जाएगा। अच्छा, ये उससे भी अगली टर्म का डेरिवेटिव लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि डेरिवेटिव टर्म्स कैसे लिखी जा रही हैं। फिर इन सारी डेरिवेटिव टर्म्स को विद द डेरिवेटिव ऑफ एरर टर्म हम जब मिला के लिखेंगे तो अब हमने इकट्ठा 1/h लगा दिया सबके साथ। लेकिन जो कि फॉर्मूला लिखने में बहुत लंबा हो जाएगा जब मैं एक्सपेंडेड फॉर्म लिखूंगा। फॉर एग्जांपल ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है कि 4th डिग्री टर्म का जो डेरिवेटिव है वो इतना लंबा है। अगर मैं हर डिग्री टर्म की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखूं तो ये फॉर्मूला लिखना दुश्वार हो जाएगा। बट देयर आर 2 ways we can simplify. One is प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। अगर मुझे सेकंड डेरिवेटिव एस्टिमेट लेना है तो मैंने ये जो टर्म बाय टर्म डेरिवेटिव्स निकाले हैं उसमें सेकंड डिग्री तक जाऊं। सेकंड डिग्री का मतलब है उस टर्म तक जाऊं जिसमें s के प्रोडक्ट जो है वो s स्क्वायर आया। सो पहली टर्म तो 0, एक्चुअल पहली टर्म फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, और एक्चुअल सेकंड टर्म सेकंड ऑर्डर डिफरेंस, एक्चुअल थर्ड टर्म थर्ड ऑर्डर डिफरेंस। तो मैं सिर्फ ये टर्म इस्तेमाल करूँ, ये कैलकुलेट कर लूँ अलग अलग, उसके बाद सबको ऐड करके 1/h से मल्टीप्लाई करके एस्टिमेट लिख दूँ। अगर 4th डिग्री तक जाना है तो फिर ये वाली टर्म जिसमें कांस्टेंट पार्ट थर्ड ऑर्डर डिफरेंस है डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, और अब 3rd डिग्री का मतलब है वो वाली टर्म तक जाएं जहां s की पावर 3 तक आ रही है। सो दिस कॉम्पैक्ट फार्मूला इज मोर सूटेड फॉर प्रोग्रामिंग पर्पसेस। अगर आप इसका प्रोग्राम डेवलप करना चाहते हैं तो फिर ये सूटेबल है। डेरिवेटिव ऑफ द एरर टर्म, हाँ, इसमें अगर x इज इक्वल टू x नॉट लिख दिया जाए, जिसका मतलब ये होगा, याद दिला दूं, x इज इक्वल टू x नॉट अगर s के फॉर्मूले में रख दें तो s बिकम 0, और जब s बिकम 0 तो ये जो फॉर्मूला है दिस बिकम सिंप्लीफाइड इनटू दिस। I leave this for your exercise that once you substitute s is equal to 0 term by term, यहाँ पे अगर s is equal to 0 रखेंगे तो क्या हासिल होगा, यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, इस टर्म में रखेंगे तो क्या होगा, इस टर्म में रखेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेट रिजल्ट इज दिस, ये आएगा। Now this is an interesting result and we will talk about this result number 16 later on for a special purpose. Note that here the derivative of the forward difference interpolating polynomial is written at a particular point, not in arbitrary point s, but a particular point where s is equal to 0 या x is equal to x naught. That gives us a symmetrical
simplification of this derivative formula. And what's the advantage of that? We will discuss it later on. So let us use this to estimate the derivative of some function behind any arbitrary data set at x is equal to 3.3 with a cubic polynomial that is created if we enter following table at I is equal to 2. ये मेरी डेटा टेबल है. 3.3 पे मुझे डेरिवेटिव एस्टिमेट करना है. 3.3 जो है 3.1 और 3.7 के दरमियान है. डिग्री मेरे पास थर्ड है क्यूबिक पोलिनोमियल, तो 4 पॉइंट्स जो इन्वॉल्व होंगे वो मैंने 2.5 से लेके 4.3 तक इस्तेमाल कर ली. और क्यूबिक एस्टिमेट ले रहा हूं तो मैंने थर्ड डिग्री टर्म्स तक डेरिवेटिव एस्टिमेट फार्मूला लिख लिया. अब फ्रॉम द डेटा I see that the data is equally spaced. 0.4 is the difference. 0.6 is the difference between two consecutive x values. So first of all, I calculate in this example what? I calculate in this example 1 upon the value of h, then value of s. क्योंकि मैंने अपनी स्टार्टिंग वैल्यू x की 2.5 ली है, तो s जो है वो x माइनस x2 डिवाइडेड बाई h होगा. h 0.6 था, सो s की वैल्यू 4/3 आ गई. या 4/3 आ गई तो थर्ड डिग्री एस्टिमेट 1/h आउटसाइड डेल्टा y2, दिस इज डेल्टा y2, यानी फर्स्ट ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस स्टार्टिंग एट x2, सो 10.1016 कांस्टेंट टर्म. उसके बाद दिस डेल्टा स्क्वायर बाई 2 8.33 दैट हैज टू बी डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, सो 1/2 यहाँ लिखा हुआ है. व्हाट्स द रेस्ट ऑफ इट? s प्लस s माइनस 1, सो s प्लस s माइनस 1. नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट ऑर्डर डिवाइड फॉरवर्ड डिफरेंस 6.711 divided by 3 factorial as suggested by this term, and the rest is what? S minus 1, 4/3 minus 1, 4/3 minus 2, 4/3 minus 0, 4/3 minus 2, 4/3 minus 0, 4/3 minus 1. So इन तीनों प्रोडक्ट्स में एक एक S minus SI ड्रॉप किया गया. Rest is simplification, and this here is the estimate of the derivative. अच्छा जी, for the estimate of derivative हम कैसे verify कर सकते हैं इस estimate of derivative को? One idea is that मैं ये जो डेटा है मेरे पास, इसको कॉपी करूं एक एक्सेल शीट में. क्या आपको ये एक्सेल शीट नजर आ रही है? नो सर. नहीं नजर आ रही है? जी, अब नजर आई? Can you see the Excel sheet now? अभी भी नजर नहीं आ रही? नो सर. नो सर. क्या चेक करे यार, मेरे पास शो भी कर रहा है कि मैं शेयर कर रहा हूं ना. सर शेयर स्क्रीन बंद करके अब आ रही है सर. अब आ रही है ना, जिसमें वो डेटा कॉपी किया है मैंने. इस डेटा के साथ मैं जो भी वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, डेरिवेटिव वैल्यू की वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, तो मैं इसका एक ग्राफ बनाता हूँ. और ये याद करता हूँ कि मैं 3.3 पर डेरिवेटिव निकाला था मैंने. अच्छा जी,
तो 3.3 पे जो डेरिवेटिव, अच्छा ये स्केल पे नहीं है, देखो 1 यूनिट यहाँ पे और 20 यूनिट्स यहाँ पे है। सो ये जस्टिस नहीं हो रहा शेप ऑफ द ग्राफ के साथ। Why I was not satisfied with the shape of the graph कि मैं at 3.3 यहाँ पे डेरिवेटिव का मतलब टेंजेंट बनाऊं, तो मेरे पास टेंजेंट की वैल्यू क्या आई? मेरे पास टेंजेंट की वैल्यू आई थी 26.8, around 27. That's a huge value. That's a huge value. और ये जिस तरह ये डेटा राइज कर रहा है, जैसे ये ग्राफ राइज कर रहा है at 3.3 पे, टेंजेंट वैल्यू इज वेरी हाई because this is highly out of scale. 1 unit on x-axis, 20 units on y-axis are almost same. So यहाँ पे अगर 3.3 पे मुझे स्लोप ऑफ द टेंजेंट फॉर एग्जांपल 3 आ रहा है, नजर आ रहा है, तो याद रहे कि हमारा y का स्केल जो है वो हाईली एक्सजेरेटेड है। So this is a way in which I can verify that मेरा जो रिजल्ट आ रहा है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का, वो जस्टिफाइड है कि नहीं है। I will repeat कि मुझे एक डेटा सेट दिया हुआ है और मुझसे कहा गया है कि डेरिवेटिव वैल्यू एट x equal to 3.3 एस्टिमेट कीजिए यूजिंग क्यूबिक पोलिनोमियल। दैट इज क्रिएटेड। सर ये ग्राफ का समझ नहीं आया सर से। ये बताओ, देखा जो ग्राफ, मैं भी बताता हूँ। Let me connect my tablet with the system so that I can make a graph on the same screen or play with the graph on the same screen. I've switched on the annotation, and there at 3.3, at this point, what does the derivative represent geometrically? It represents tangent, and tangent means a line, something like this. When I consider this line, what is the apparent slope of this black line? In one step of x, how many steps of y? In one step, हाँ बोलो। सर ज्यादा है y के स्टेप्स, वन स्टेप से x के देखो, काफी ज्यादा। हाँ जरा इधर देखो, जब x का स्टेप 1 है तो y के 20 स्टेप है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 स्टेप बनाया है, तो ये 20 से ऊपर ही बना है ना। यस सर। तो मेरा जो एस्टिमेट आया था वो 27 के करीब था स्लोप का, यानी डेरिवेटिव का। गेट इट? यस सर, समझ गया। ठीक। सो मैं क्योंकि जो हम इंटरपोलेशन करते हैं, अगर 3.3 पर मैं इंटरपोलेट कर रहा होता y की वैल्यू, तो मैं उसको देखता कि यार ये रिजल्ट रिजल्टेबल है कि नहीं है। अगर वो 22 और 40 के दरमियान रिजल्ट आता, तो y की एस्टिमेशन के लिए जो मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं रफली ये देखता हूँ कि जो y का एस्टिमेट आ रहा है वो अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है इन द डेटा और नॉट। लेकिन जब मैं डेरिवेटिव का एस्टिमेट लूंगा, तो डेरिवेटिव के एस्टिमेट के लिए मुझे स्लोप का सहारा लेना पड़ेगा, या एक और भी तरीका हो सकता है। गो बैक टू here you have got first order differences. 3.3 is placed here. 3.3 से ऊपर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस कितना है? 18। तो 3.3 से नीचे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस कितना है? 33। तो एट 3.3 अगर मेरे पास डेरिवेटिव का एस्टिमेट 27 आ रहा है,
तो डेरिवेटिव इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो जो 27 आ रहा है वो 18 और 27 के बीच में है, दो कंसेक्यूटिव फर्स्ट ऑर्डर्स अराउंड 3.3। ये भी एक तरीका है। ग्राफ, इसलिए कि मुझे कैलकुलस बहुत अच्छा लगता है तो फौरन मैं ग्राफ और ग्राफ पे टेंजेंट में आके दिखाता हूँ। सो दैट इज what I wanted you to know about, I should say, elementary methods for finding out estimates of derivatives using either divided difference interpolating polynomial, यानी जब डेटा unequally spaced हो, और फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल जब डेटा इक्वली स्पेस्ड हो। थोड़ी देर पहले मैंने एक रिजल्ट इंट्रोड्यूस किया था, रिजल्ट नंबर 16, कि अगर मैं किसी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल जो किसी डेटा से हासिल हुआ है मुझे, उसमें s इज इक्वल टू 0 डाल दूं तो उसकी ये सिंप्लीफिकेशन आती है ना। इस सिंप्लीफिकेशन को मैं अब आगे बढ़ाना चाहता हूं। And how will I do that? I will use the topic higher derivatives. How can I estimate higher derivative? I think I'll not be able to complete this discussion on higher derivative today. So I will consider a few minor points before I go into the details of higher derivatives and terminate today's discussion. ये जो स्पेशल फॉर्मेट है जो मैंने 16 में आपको दिखाया था, इसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करना चाह रहा हूँ। Let me show you the whiteboard and discuss few things there. हमारे पास जो डेरिवेटिव एस्टिमेट था उसकी कुछ ऐसी शक्ल थी, stuck up, disconnected. Okay, what was the first term? First term was delta y naught minus second term 1/2 delta square y naught plus 1/3 delta cube y naught minus 1/4 delta 4 y naught plus so on, isn't it? Or was it a bit different? So let me go back to the Excel sheet. Yes, delta y naught से शुरू हो रहा है। अच्छा, let me go back to the, ये मैं कहता हूँ कोई फंक्शन है, I call it f at s is equal to 0, basically ये डेरिवेटिव है। s is equal to, और इसके बाहर एक 1/h है। मगर मुझे इस एक्सपेंशन में इंटरेस्ट है। आपने अर्लियर कोर्सेज में एक्सपेंशंस पढ़े होंगे। फॉर एग्जांपल sin x का एक्सपेंशन was x minus x cube by 3 factorial plus x power 5 by 5 factorial minus x power 7 by 7 factorial blah blah blah। इसी तरह cos का एक एक्सपेंशन पढ़ा होगा आपने, 1 minus x square upon 2 factorial plus x power 4 upon 4 factorial minus something, etc. Anyone remember these expansions?
मैंने कैलकुलस में पढ़ा था। जी, कैलकुलस में पढ़ा था। वहां पे एक एक्सपेंशन था LNS। Anybody remember that? It was in fact ln 1 plus x का एक्सपेंशन था। x minus x square by 2 plus x power 3 by 2, 3 minus x power 4 by 4 plus so on. I want you to show that this expansion has a similar format as ln x plus 1. अच्छा, ये तो तुम लोग भूल चुके होगे ना, ये एक्सपेंशन आते कैसे हैं। फर्स्ट करो, मैं कहूँ y is equal to ln 1 plus x. What is the derivative? Anybody can suggest the derivative? What's the So 1 derivative? over 1 over 1 plus x. 1 plus x. So what about the derivative at 0? So 1 है क्या? अरे यार, कमेंट पे नहीं लगा, वैसा ही ठीक है, तुमने बता दिया 1/1 plus x. अगर x equal to 0 लिखते हैं तो 1. What will be the second derivative? सेकेंड डेरिवेटिव के लिए मैं इस फंक्शन को ट्रीट करूंगा 1 plus x raised to power -1. तो -2 upon 1 plus x raised to power 2. और y second derivative at 0 will be what? -2. y थर्ड डेरिवेटिव के लिए मैं इसको ट्रीट करूंगा -2 into 1 plus x raised to power -2. तो अब डेरिवेटिव जो होगा वो -2 तो पहले से था, -3 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। दिस इज 1, क्योंकि ये फंक्शन जो है ये 1 plus x raised to power -1 है ना, तो डेरिवेटिव लेंगे, पावर मल्टीप्लाई होगी, पावर डिक्रीज होगी, और यहाँ पे ये -3 नहीं आएगा। -1 पहले से था, -2 अब आया, यानी अब मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ -1 plus x raised to power -2 का। इसका डेरिवेटिव लूंगा -1 into -2 into 1 plus x raised to power -3, इसका मतलब 1 plus x raised to power 3 in the denominator. And the third derivative value at 0 क्या होगी? -1 squared 2 factorial upon 1 plus 0. So only 2 factorial. This value, सर 2 फैक्टोरियल में 2 नहीं लिख सकते हम लोग? अरे हाँ लिखते हैं, हमें आदत पड़ी है भाई 2 फैक्टोरियल लिखने की। इसको देख के मैं कहूंगा कि जी चौथा डेरिवेटिव जो आएगा एट x इक्वल टू 0, दैट विल बी -1 raised to power 3 into 3 factorial. 1 plus 0 raised to power 4. So that is -3 factorial. इसको हम 6 लिख सकते हैं। अब एक होता है मैक्लॉरिन एक्सपेंशन कि y is equal to x is equal to y at 0 plus x times y prime at 0 plus x square upon 2 factorial y double prime at 0 plus x cube upon 3 factorial y triple prime at 0 blah 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 blah. अब ये जो रिजल्ट्स आए मेरे पास, व्हाट वाज y ऑफ 0? अगर x की जगह तुम ln 1 plus x में x की जगह 0 रख दो तो ln 1 बचेगा, इसका मतलब 0। तो ये हुआ 0। फर्स्ट डेरिवेटिव 1 आया प्लस x, सेकेंड डेरिवेटिव -2 आया, सो -2x स्क्वायर अपॉन 2। थर्ड डेरिवेटिव क्या आया, फिर 2 आया, x क्यूब अपॉन व्हाट, थर्ड डेरिवेटिव 2 आया था, 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट टर्म
माइनस 4 डेरिवेटिव 3 फैक्टोरियल आएगा x पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल and so on. This whole simplifies to this thing. And ये जो हमने first derivative of forward difference interpreting polynomial at s is equal to 0 लिखा है, उसकी बिल्कुल यही format है. This is like x. This term is like x square upon 2. This term is like x cube upon 3 and so on and so forth. So इस चीज को लेकर हम अपनी जो है बात को आगे बढ़ाएंगे डे आफ्टर टुमारो इंशाल्लाह and study how to estimate get estimates of higher derivatives of the function when we have only data available. With that, I terminate today's discussion. First, let me stop the recording and hopefully I'll be सर एक सवाल पूछ रहा था. हाँ पूछो बेटा. सर ये क्विज में अगर एक्सेल शीट हम लोग पीडीएफ बना के दे रहे हैं उसमें तो फॉर्मूलाज नजर नहीं आएंगे, तो अगर ये करें तो गलत. एक्सेल शीट दे दें. तो सर ये तो सारे क्विज़ में पीडीएफ ही सेंड किए मैंने तो. अब बहुत सी चीजें चेंज कर रहा हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता. जो जैसे जैसे हालात ख़राब हो रहे हैं आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर लिबरल. तो कोई मसला नहीं है. अभी आ गया है कि 26 तारीख से तो वैसे ही बंद हो रहा है सब कुछ. एक इत्तला ही है और पता नहीं किस तारीख से सर्दियों की छुट्टियां हो जाएंगी. आईबी की क्या पॉलिसी अभी वो सामने नहीं आई है, लेकिन ये हमारी क्लासें चल रही हैं, ये चलती रहेंगी. और मेरा ख्याल है कि अगर मैं इसी तरह कर रहा हूँ. हाँ, जो आपकी क्विज असाइनमेंट सबमिशन है ना, उनमें अब एक्सेल शीट जो है उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने पैकेज में. तो अगर आपके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे काम किया है आपने, जैसे एक कागज़ पे आपने सवाल सॉल्व किया है तो उसकी पिक ले लें, और आपने एक सवाल उस पे एक्सेल पे किया है तो उसकी एक्सेल फाइल ही ले लें और एक फोल्डर बना दें. आई डोंट नो आप लोगों को फोल्डर अपलोड करने के आपके पास ऑप्शन होता है कि नहीं एलएमएस पे? यस सर, जिप में वो करके फाइल्स अच्छा. कर सकते हैं अपलोड और साथ में जिप फोल्डर भी कर सकते हैं. That's nice. So I want to keep things more and more open to facilitate you that instead of wasting time in converting to single PDF, you just make your folder या अलग अलग फाइल अपलोड कर सकते हो तो अलग अलग फाइल अपलोड कर लो. क्योंकि मैं एक वक्त तसल्ली से बैठ के सारी फाइल जो हैं वो खुद चेक करूँगा, असाइनमेंट्स खास तौर पे, और क्विज कुछ मैं चेक कर रहा हूँ, कुछ टीए चेक कर लेंगे. सो एनी अदर क्वेश्चन? सर तो आज वाले में हम लोग रीसबमिट करें या जो पहले जो गया सो गया, जो गया सो गया. हाँ, अगर तुम चाहो तो मुझे ईमेल कर सकते हो. ठीक है सर. मैं ईमेल खुद एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास मैं एट टाइम्स सो इन्वॉल्व इन सम अदर एक्टिविटीज़. और अभी तुमने देखा होगा रिसेंटली मैं चैनल के ऊपर काफ़ी काम कर रहा हूँ, और अब सारे लेक्चर्स जो हैं ये भी मैं अपने चैनल पे डालूंगा, यूट्यूब चैनल पे. इंस्टेड ऑफ अपलोडिंग वहाँ भी अपलोड कर दूंगा अपने जो ड्राइव है, वन ड्राइव है आउटलुक की, लेकिन माय प्रेफरेंस इज कि मैं इसको यूट्यूब पे डालूँ. तो बाज़ वक़्त इतना इन्वॉल्व होता हूँ मुख्तलिफ़ चीज़ों में, और ज़ाहिर है उसके अलावा और मतलब कुछ ज़ाहिर है घर की कमिटमेंट भी होती हैं. बुढ़ा तो हो गया हूँ, लेकिन वो तो इंसान जितना उम्र में आगे बढ़ता जाता है उतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती जाती हैं. एनीवेज, तो मैं 80 स्टूडेंट्स अगर मुझे ईमेल करें अपना असाइनमेंट या अपनी क्विज, दैट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि ईमेल्स आ रही होती हैं धड़ाधड़. अब या तो मैं एक ईमेल बिल्कुल मखसूस कर दूँ तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता. मेरे पास 3 ईमेल एड्रेसेस हैं, लेकिन तीनों पर जो है वो ट्रैफिक बहुत है. जो ऑफिशियल है आईबी का उस पर तो बेतहाशा ट्रैफिक है. मेरा जो जीमेल का है उस पर भी बहुत ट्रैफिक है. याहू का जो मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ उस पर भी ट्रैफिक है बहुत. तो 80 आ जाएं तो कई जो है वो मिस हो सकते हैं मुझसे. Anyways, that is not an issue.
किसी वक्त तसल्ली से बैठ के सब कुछ इकट्ठा किया जा सकता है। सो आई टर्मिनेट टुडेस सेशन। अभी भी कोई बात है कहने की? कह दो, नो इशू। सर तो अभी ईमेल में करूं या फिर रहने दो? अबे कर दे यार, ओके। कर दे भाई, कर दे। सो आई हैव